Smith, as you know, has secured All India rank 30 in Civil Services 2024. It was his second attempt, and he is a GS Foundation course student. Welcome, Smith. Second candidate, Mr. Nilesh Goyal. Welcome, Nilesh. All India rank 77, again GS Foundation course, BTech Mechanical. Congratulations. So this session will be interaction with the two top rankers of our foundation course students both. So there will be discussion between you and them. They will share about their strategy of preparation, how they prepared, what sources they followed, and what was the plan of study, micro planning, macro planning, and all this. At the end, question and answer from your side, whatever you would like to ask, that you can have a discussion. Smith Panchal, Hasmukh Bhai, he was a GS Foundation course student, followed by the other minor courses which we offer. Then he comes from Ahmedabad, Gujarat, and his optional was political science. And Nilesh Goyal is rank 77, optional is sociology, and both were in second attempt. He also joined GS Foundation, but it was his live online course, and he comes from the Karauli, Rajasthan. He is BTech in mechanical and from NIT Jaipur. So this is just a brief. For us, what is more important is our foundation course students succeeding in the exam. So that is, this institute is not very old. All of you are aware, this is our 7th session now. And in 7 years of journey, these students' trust and these students' effort have resulted in a very great success in terms of the results. We wish in time coming ahead, you will make us proud, and you will make us proud, and we will celebrate, and that is for the day which we are working. Thank you. Yes, so good morning everyone. Brief introduction by myself only. My name is Smith Panchal. I'm 22 years old, and this was my second attempt, and I have secured All India rank 30 this year. Just 1 year before, I was sitting there only, and now I feel I have done something as I am sitting here. And he will also introduce himself first. Good morning everyone. आवाज नहीं आ रही यार, नाश्ता नहीं किया क्या? Good morning everyone. So my name is Nilesh Goyal. I have done BTech in Mechanical Engineering from NIT Jaipur. After that, I have worked in Bharat Heavy Electrical Limited. This was my second attempt at UPSC, and I have secured All India rank 77. I can tell you about prelims, mains, interview. Smith will be much. मेरा interview में score बहुत खराब था, मेरा 155 ही मिला. So Smith will tell you about interview, prelims and mains. I'll tell you, and you can ask any query you have to me. Thank you. So we'll begin first with the prelims only. So for me, prelims was the biggest hurdle. My first attempt, I couldn't clear the prelims only. मेरा CSET में रह गया था, because at that time I was overconfident कि मेरा CSET हो जाएगा. But यही first advice तो यही रहेगी कि CSET को हल्के में मत लो. तो first शायद एटलीस्ट लास्ट ईयर मैं मेंस तो लिख पाता. आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिलेक्शन, बट एटलीस्ट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड हैव रिटन द मेंस, बिकॉज जीएस में मेरे स्कोर अच्छा था, कट ऑफ से 25 मार्क्स ज़्यादा था. तो फर्स्ट तो प्रीलिम्स में मेरे लिए 2 गेम रही जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया. दैट वाज आई प्रायोरिटाइज 2 थिंग्स. फर्स्ट वाज सिलेक्शन और दूसरा था मैनेजमेंट. तो सिलेक्शन में मतलब आई प्रायोरिटाइज्ड कि ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है, कि जैसे इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे कंपैरेटिवली. जैसे एंशिएंट, मिडिवल, सारा हिस्ट्री का मिला के 8 से 10 क्वेश्चन आते थे. तो मुझे पता चल गया था कि भाई जहाँ से मेरा मतलब एफर्ट के सामने रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा था, तो मैंने ऐसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला कैलकुलेशन कर लिया था. तो सेकेंड अटेम्प्ट में ये तो रहा ही था. और सीसेट के लिए PYQs आर होली ग्रेल. वो तुम्हारे भगवत गीता जैसे है सीसेट के लिए, क्योंकि कहाँ से पढ़ना है, कौन सी थीम पे फोकस करना है, तो PYQs के ज़्यादा अच्छा कुछ सोर्स हो नहीं सकता, क्योंकि इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थीम्स बहुत रिपीट होती है सीसेट में. सो दीज 2 थिंग्स वर्क फॉर मी इन द सेकेंड अटेम्प्ट. तो मेरा प्रीलिम्स जो मेरा गेट कीपर रहा था, तो वो जैसे ही वो गेट खुला
So then I cleared the mains and cleared the interview, and this year I got selected. ठीक है, मैं शुरू इससे करूंगा कि अच्छा इस साल प्रीलिम्स कौन कौन दे रहा है? तो 26 का अटेम्प्ट कर रहे हो बाकी सब लोग? हाँ ठीक है, तो ये एग्जाम में तैयारी ऐसे नहीं होती कि प्रीलिम्स का कर लिया फिर मेंस का कर लिया फिर इंटरव्यू का कर लेंगे। तैयारी इंटीग्रेटेड होती है। आप मेंस के लिए पढ़ो, प्रीलिम्स के लिए अपने आप हो जाएगा। आपको फैक्ट पढ़ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, अभी इंडस वाटर ट्रीटी का इशू चल रहा है, तो उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, हमारा क्या रेशो है, कौन कौन सी रिवर पाकिस्तान में जाती है, कौन सी रिवर हमारे यहाँ रहती है। तो आपको ये सारे इश्यूज पूरे कवर करने हैं। आप कोई भी टॉपिक ले लो जो न्यूज में है, या तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ जाएगा एक्सप्लेन में या कहीं पे भी, या उसको टॉपिक उसके बाद यूपीएससी कीवर्ड डाल के गूगल में सर्च कर लो, नहीं तो आपको कोचिंग में नोट्स पे लिखे वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। उसको करके आप पूरा डायमेंशन कवर करो, आपका प्री क्लियर मतलब प्री के लिए जो भी चाहिए आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पांचाल ने सब कुछ चीज बता दी, मैं खाली एक चीज ऐड करूंगा। आपको सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट सब पता है, पीवाईक्यू करना है वो पता है। पीवाईक्यू लोग क्या करते हैं ना कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, पढ़ लिया हो गया। आपको क्वेश्चन के चारों ऑप्शन देखने हैं, क्योंकि वो कीवर्ड्स है जो आपको आगे के लिए तैयार करने हैं। तो वो चारों कीवर्ड्स की अच्छे से स्टडी करो और उसी को आप अपना स्टडी का बेस बनाओ, उसके ऊपर आप वैल्यू एडिशन जो भी करना है करो। प्रीलिम्स में आपको और कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात सी सेट की, सी सेट के लिए आपको सोचना नहीं है, हो जाएगा, उसको ग्रांटेड नहीं लेना है। उसको आप जो भी मॉक देने हैं, कुछ भी करना है करो। और जो लोग इस बार प्री देने वाले हैं उसके लिए मैं बस यही बात कहूंगा, आप नई चीज मत ढूंढो। आप जो भी आपका रिवीजन के लिए नोट्स बनाए, नहीं तो प्लेसेस इन न्यूज या कुछ जैसे नया 58 टाइगर रिजर्व बनाए, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट करंट के जो इश्यूज है उनको पढ़ लो। उसके बाद ज्यादा नई चीजों के पीछे भागेंगे तो कर नहीं पाएंगे हम। तो बस मेरा यही था। और प्रीलिम्स के लिए एक दो चीज़ और अगर बताना चाहूँ तो प्रीलिम्स डजंट, क्योंकि मेजोरिटी में अगर आप देखने जाओगे ना तो 40-45 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को आते नहीं है। तो रेस्ट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेटेड गेस वर्क। तो अभी ये जो गेस वर्क करना है उसमें हमारी एक्यूरेसी बढ़े, उसके लिए द मेन थिंग यू हैव टू डू इज़ आपको वास्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप वास्ट इंफॉर्मेशन को अपने अंदर गैदर करोगे ना तो यू विल हैव अ बेस कि जिसके हिसाब से आपका एक इंट्यूशन बैठेगा। जैसे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अब तुम टेस्ट दोगे ना तो यू हैव नॉट रेड द क्वेश्चन बिफोर, बट तुमको लगेगा कि यही आंसर होना चाहिए, तो आपका इंट्यूशन बन जाता है। तो प्रीलिम्स में काफ़ी टाइम एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होगा ना, फिर भी दैट विल वर्क बिकॉज यू डू नॉट हैव टू राइट, यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस। सो दिस विल ऑल्सो वर्क फॉर दैट। तो प्रीलिम्स में आप थोड़ा ना वास्ट इंफॉर्मेशन को भी गैदर करोगे तो दैट विल वर्क वेल। और इसमें प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का भी एक बार बता दो। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एक्यूरेसी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। प्लस आपको एक चीज का आइडिया लगेगा कि मेरे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कुछ लोग पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, कुछ लोग 80 अटेम्प्ट करके आते हैं, फिर भी उनका प्री निकल जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देके अपना एक्यूरेसी लेवल चेक करना है कि मेरे को कितने अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि मेरा स्कोर ऑप्टिमाइज हो जाए। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात है तो आपका जो वन एंड ओनली सोर्स न्यूज़पेपर होना चाहिए। आप जो मंथली कंपाइलेशन है, ईयरली कंपाइलेशन है, उनको देख सकते हैं ताकि आपको एक जगह पे सारी चीज़ मिल जाए, ढूंढना ना पड़े इधर उधर। बाकी न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने का मेरे को कभी भी सही नहीं लगा, मैंने तो कभी नहीं बनाए थे। बाकी आप लोग अगर कंफर्टेबल है तो बना सकते हैं। उससे बेटर है कि आप जो मंथली ईयरली कंपाइलेशन है उनको देखें, उनको करके चले जाएं। बाकी ऐसा भी नहीं करना है कि उन पे ओवर एम्फेसाइज करके अपने स्टैटिक को छोड़ दे। स्टैटिक आपका की है, स्टैटिक अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप कभी अच्छा नहीं कर सकते। पहले स्टैटिक अच्छा करो, उसके बाद करंट अफेयर पे ध्यान दो। और करंट अफेयर में ऐसा है ना कि आई नेवर सॉ इट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। पहले तो करंट पूरा ऐसा नई चीज़ नहीं होती, इट इज़ बेस्ड ऑन करंट, वो अपना स्टैटिक पोर्शन के ऊपर ही होता है। यू हैव अ स्टैटिक वो सिलेबस होता है, उसके ऊपर ही समथिंग कुछ डेवलपमेंट होगा तो वही तुम्हारा करंट बन जाएगा। तो करंट अफेयर को ऐसे सेपरेट सब्जेक्ट नहीं लेना है, उसको इंटीग्रेट ही रखना है कि तुम्हारे स्टैटिक से ही इंटीग्रेटेड ही रहता है। और देखो ये एग्ज़ाम की ब्यूटी यही है कि टू पर्सन्स विद डिफरेंट अप्रोच, वी बोथ आर सिटिंग राइट हियर। तो न्यूज़पेपर जैसे इन्होंने बोला, तो पर्सनली मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा फॉर प्रीलिम्स। फॉर मी मेरे कंसिस्टेंसी न्यूज़पेपर में नहीं रहती थी, तो आई यूज़ टू रिलाई ऑन द कंपाइलेशंस ओनली एज ही सेड। और वो कंपाइलेशन में मैंने बोला ना कि वास्ट इन्फॉर्मेशन जितना आएगा तो इंट्यूशन बन जाता था। और टेस्ट, यस यू शुड गिव मोर एंड मोर टेस्ट, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रैक्टिस करोगे ना तो, क्योंकि व्हेन वी रीड तो कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को हम एक तरीके से लीनियर वे में पढ़ते हैं, बट व्हेन वी सी द एग्ज़ाम क्वेश्चंस ना उसको तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। तो ये तोड़ मरोड़ के दिखाना और उस टाइम पे एग्ज़ाम सिचुएशन में अपने मेंटल एबिलिटी को कैसे जगाए रखे और उस प्रेशर को कैसे संभाले, उसके लिए टेस्ट विल हेल्प। तो टेस्ट तो देने ही चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर प्रीलिम्स एटलीस्ट, और उसमें प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम डे ऑल्सो। मैं एक और चीज़ फिर से बोलूँगा, आपको टेस्ट जितने देने हैं दे लो, 100 देने हैं, 50 देने हैं, जितने देने दे लो।
बट बगैर PYQ करे अगर आप चले गए फाइनल एग्जाम में तो वो वर्थ इट नहीं है। आपको PYQ पूरे करने हैं, अच्छे से करने हैं, चारों ऑप्शन देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, कुछ भी करना है, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके जाना ही है, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ इट, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें। राइट एंड कैन वी गो फॉर मेंस? एनी डाउट इन any प्रीलिम्स? doubt on prelims you can ask. how do you approach the environment subject? Particularly, I found it like it's बहुत ज़्यादा strict. लो हैंगिंग फ्रूट मतलब कि उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था इस इन दैट वे। टफ तो है ही सब्जेक्ट। मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रहती थी कि क्लास नोट्स जो है जो AP सिंह सर के थे, आई यूज़ टू रिलाई ऑन दैट ओनली। और जो प्रीलिम्स के लिए 365 या कुछ कोई मटेरियल आता था उससे मैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करता था, इंट्यूशन बनाने का ट्राई करता था। एनवायरनमेंट में अगेन टेस्ट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि आप लीनियर इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, यू डू नॉट नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है। तो उसमें जैसे ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट आती है ना, दैट विल हेल्प। उससे रिवीजन भी हो जाता है और आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो रिवाइज बार बार होगा, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस आफ्टर अ पॉइंट। तो मेरे लिए एनवायरनमेंट तो ऐसे वर्क किया है। यस, नो स्टैंडर्ड बुक्स फॉर मी। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा इसमें। लो हैंगिंग फ्रूट मेरे हिसाब से क्या था ना कि एनवायरनमेंट में सपोज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन तो ऐसे है कि ये कौन सा स्पीशीज है जो हाथ का यूज करके ये करता है वो करता है, तो आप उनको ढूंढ भी नहीं सकते और मतलब करना वेस्ट ऑफ टाइम है उसका। अच्छा मेरे को नहीं लगता उसमें टाइम वेस्ट करना, उसकी बजाय जो ये ट्रीटी कब हुई थी, इसमें किसकी बात करी गई थी, किगाली, मॉन्ट्रियल वगैरह, उन सबको जो स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से कर लो। कौन सा टाइगर रिजर्व बना है अभी, 58 टाइगर रिजर्व कौन सा है पता है आपको? हाँ, माधव टाइगर रिजर्व बना है MP में। तो मतलब करंट अफेयर में जो बहुत ज्यादा सभी, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो सबका गलत नहीं हो रहा, तो आप सेफ हो। तो करंट अफेयर में जो है उसको कवर कर लो, उसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर कर लो। आई थिंक यू आर गुड टू गो। एनीवन एल्स? उसमें मेरा यही था कि मैं करंट अफेयर को न्यूज़पेपर से पढ़ता था। न्यूज़पेपर में शुरू में जब हम शुरू कर रहे हैं तो जितना समझ में आ रहा है ठीक है, कवर कर रहे हैं हम। उसके बाद जैसे सपोज मेरा पॉलिटी खत्म हो गया तो उसके बाद मैं अच्छे से करूंगा। जैसे अभी डिलिमिटेशन का इशू चल रहा है, डिलिमिटेशन का कौन सा आर्टिकल है कोई बता सकता है मेरे को? 82। एक बार पढ़ लेना, मतलब जैसे डिलिमिटेशन चल रहा है हमको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल है, इसमें कितने, अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कितने डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं। हाँ, तो माई पॉइंट इज कि डिलिमिटेशन न्यूज में है तो हमको उसके आसपास की सभी चीजें पता होनी चाहिए। तो आपका जो पॉइंट था कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन को कैसे पढ़े, आपका जब तक टॉपिक नहीं हुआ ठीक है, आपको जितना समझ में आ रहा है करो, ज्यादा एफर्ट मत लगाओ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एक बार आपको टॉपिक हो गया, सिलेबस हो गया, उसके बाद आप उसमें एफर्ट लगाओ। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको गूगल की हेल्प लो, उसको किसी और टीचर की हेल्प लो, किसी से भी हेल्प लेके आप उसको कवर करो, और वो आपको फिर गलत नहीं होना चाहिए। मेरा ये है। आई वॉन्ट टू ऐड दैट कि मैं कभी एंड टू एंड नहीं पढ़ता था कि फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक ऐसा। आई यूज टू जंप, कि जो मेरे को पता है मैं रिपीट में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इफ देर इज़ समथिंग न्यू उसको लिया, दैट्स इट। बिकॉज मैं जंप करता था, क्योंकि बार बार जो नोट्स में उसको मैं रिपीट नहीं करता था। काफ़ी टाइम हम ना उसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं कि इसमें से ही पूछने वाला है, दैट इज़ नॉट द थिंग। कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो जो मेरे लिए नया था उसको मैं पढ़ लेता था, बाकी जो मेरे को लगता था स्किप करने जैसा है। तो अल्टीमेटली जैसे 100 पेज का होता है ना करंट अफेयर्स का, वो 20-25 पेज में ही आ जाएगा तुम्हारा, अगर इफ़ यू कैन फिल्टर आउट। क्योंकि जो तुमको पता है यू कैन स्किप इट, बट उससे रिवाइज जल्दी हो सकता है कि अगर स्किप कर पा रहा हो तो दिस इज़ माई प्रोसेस। अच्छा मैं एक और पॉइंट बोलूंगा, सारे लोग मेरी बात से एग्री नहीं कर सकते हैं, बट एक मंथली कंपाइलेशन है, ईयरली कंपाइलेशन है, वो रिवीजन करने के लिए अच्छा हो सकता है, बट वो फर्स्ट टाइम रीड के लिए अच्छा नहीं है। फर्स्ट टाइम रीड के लिए न्यूज़पेपर अच्छा है क्योंकि उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें जैसे स्मार्ट लोगों के लिए वो काम किया, लेकिन हम सब के लिए काम नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से जो टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है न्यूज़पेपर पढ़ने की, उसमें थोड़ा सा हम डेली पढ़ें, जितना याद रहेगा रहेगा। उसके बाद मंथली कंपाइलेशन है, उसमें पढ़ के हम याद रखेंगे, याद करेंगे उसको बार बार। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। एनीवन एल्स? ठीक है, तो फिर हम मेंस की बात करेंगे। तो मेंस के लिए तो दिस वाज माय फर्स्ट मेंस, और लास्ट भी है अब तो। तो फर्स्ट मेंस था और आई हैड ओनली 90 डेज टू कवर ऑल। तो मेरा जो सेकंड प्रिंसिपल रहा था मैनेजमेंट, दैट प्लेड द मोस्ट पार्ट इन ईयर, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का ही गेम है। यू हैव टू मैनेज GS पेपर, ऑप्शनल पेपर एंड ऐसे पेपर। तो मेरे लिए फर्स्ट था, तो पहले तो मैं ओवरवेलम हो गया था। तो फॉर 5-10 डेज मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे पढ़ो क्या पढ़ो, क्योंकि एवरीवन सब एक साथ पढ़ने गया था तो हौच पौच हो गया था।
फिर मैंने यही डिसाइड किया कि आई विल डिवाइज द टाइम टेबल लाइक दिस, आई विल गिव 50% ऑफ द डे फॉर ऑप्शनल एंड रेस्ट 50% फॉर जीएस। उसमें भी मैंने, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, ज़्यादा सिलेबस कवर करना था, तो आई ट्राइड कि एक दिन में 2 जीएस के पढ़ सकूँ। उसमें भी मतलब 1 जीएस एज अ कोर सब्जेक्ट और दूसरे जीएस में से कुछ जैसे इजी टॉपिक्स है उसको रात में पढ़ सकूँ, वैसे मेरा प्रोसेस रहा था। एंड फॉर ऐसे माई स्ट्रेटेजी वॉज सिंपल, आई यूज टू रिलाई ओनली ऑन टॉपर्स कॉपी, क्योंकि मुझे उससे बेटर ऐसे के लिए कुछ मिला नहीं है। एंड इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर्स फॉर, क्योंकि मेंस में क्या है, वैल्यू एडिशन का पार्ट ज़्यादा रहता है कि कैसे वैल्यू ऐड करें, जो स्टैटिक हमने पढ़ा है उसमें वैल्यू ऐड करके आंसर राइटिंग कैसे करें। तो मेरे लिए तो टॉपर्स कॉपी यूज टू बी द बेस्ट सोर्स, क्योंकि मेरा दिमाग ये चलता था, बिकॉज आई थॉट कि जब टॉपर ने कोई आंसर लिखा होगा कोई टॉपिक पे, तो पहले तो उसने 20-25 पेजेस उसमें पढ़े होंगे। जब वो आंसर लिखता होगा तो उसने फ़िल्टर आउट किया होगा और उसको जो बेस्ट लगा होगा वही लिखा होगा ना उसने। तो मुझे लगता था कि जो सबसे क्रिस्प फिल्टर्ड आउट वैल्यू एडिशन है उसको ही मैं डायरेक्ट ले लूँ, क्योंकि टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। तो मेरे लिए वैल्यू एडिशन के लिए टॉपर्स कॉपी यूज टू बी द बेस्ट थिंग। मैं लंच डिनर में खाते टाइम वही देखता रहता था, उससे मेरा रिवीजन भी हो जाता था, और जो मैंने स्किप कर दिया है उसको मैं जैसे जो पॉइंट मेरे को नहीं आता था, जैसे कोई एनजीओ एसएचजी में कुछ नया पॉइंट कोई टॉपर ने लिखा, वो बस मैं अपने दिमाग में रख लेता था, एंड दैट यूज टू वर्क। एंड फॉर ऑप्शनल मैंने क्रैश कोर्स लिया था और उसमें मैं लेक्चर्स ही सुनता रहता था। मैंने टेस्ट ज़्यादा नहीं लिखे, बट बिकॉज मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा था, तो आई यूज टू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आंसर राइटिंग। दैट विल नॉट वर्क फॉर एवरी वन, मेजोरिटी ऑफ देम से दैट टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो आई यूज टू फोकस मोर ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि कैसे PYQs है या कोई टेस्ट पेपर था जिसको मैं लिख नहीं पाता था, उसको मैं सोच लेता था कि स्क्रिबल कर दिया कि ये पॉइंट लिखना है, कोई पेस्टल अप्रोच कैसे यूज़ करना है। सो दैट यूज़ टू वर्क फॉर मी। मैंने टेस्ट टोटल जैसे GS के 8 लिखे थे, 3 ऐसे के लिखे थे और 2 ऑप्शनल के लिखे थे, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। और पहले से थोड़ा बैकग्राउंड PSIR का था, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन PSIR, सो ऑप्शनल में मैंने थोड़ा कम लिखा, बिकॉज आई फाउंड कि आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ, and that has worked for me. Or plus disclaimer is this, that we are here talking about what work for us. इसको आप पत्थर की लकीर मत ले लेना, यू जस्ट चूज वॉट वर्क्स फॉर यू, क्योंकि हर आदमी की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। आई हैव डन समथिंग एल्स, ही इज़ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, समथिंग हैज़ वर्क फॉर हिम, समथिंग हैज़ वर्क फॉर मी। तो जस्ट सिलेक्ट वॉट आपके हिसाब से चलता है, किसी को होली ग्रेल या पत्थर की लकीर मत बनाना। तो दिस हैज़ वर्क फॉर मीन्स कि उसमें मैंने सिलेक्ट किया और थोड़ा प्रायोरिटाइज करके आई कुड मैनेज वेल, सो दैट हैज़ वर्क फॉर मी। मैंने शुरू में बोला था मेरे लिए दिस एग्जाम वॉज ऑल अबाउट मेंस। मेंस में मेरे को पता था अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो लास्ट में तो हम कर ही जाएंगे, और मैंने जैसे बताया था मेरा मेंस में 835 मार्क्स है। अगर ये नहीं होता तो शायद मेरी रैंक नहीं होती, मेरा इंटरव्यू बहुत गंदे मार्क्स थे क्या बोलना है। तो मेंस में मेरी स्ट्रेटेजी ये रही थी कि सबसे पहले जो बेसिक बुक्स है उनको कर लो आप, उसके बाद जितना टेस्ट, जैसे स्मिथ ने बताया मैंने उससे अपोजिट किया था, जितने टेस्ट लिख सको उतने टेस्ट लिखो। मैंने यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज में इनरोल किया था, 12 टेस्ट GS के थे, 5 टेस्ट ऐसे के थे, मैंने पूरे के पूरे लिखे, हर टेस्ट में मैंने इंप्रूव किया। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता था कि मेरे को टू द पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा हो, मेरे को कुछ भी आता हो नहीं आता हो, उसको फ्लावरी लैंग्वेज नहीं चाहिए, उसको टू द पॉइंट आंसर चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, उसकी पढ़ने में कम से कम एफर्ट्स लगने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको मार्क्स देगा और अच्छे मार्क्स देगा वो। बाकी रही बात ऑप्शनल चूज करने के लिए, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव चोजन योर ऑप्शनल, और कोई ऐसा भी है जिसको अभी ऑप्शनल चूज करना है, तो सबने चूज कर लिया है, तो ऑप्शनल चूज कर लिया है, तो अब उसको ये मत सोचो सही डिसीजन था गलत डिसीजन था, जो भी है उसको अच्छे से तैयार करो। उसमें मार्क्स लेके आने के लिए टू द पॉइंट लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, और आंसर की जो वर्ड लिमिट है उसमें लिखना है। कई बार हम ओवरवेल्म होकर ज़्यादा लिख देते हैं, तो या तो कोई क्वेश्चन छूटेगा, नहीं तो फिर हमारा पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा। हम 20 आंसर अगर एवरेज लिख देंगे वो बेटर है कंपेयर टू अगर 15 आंसर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखेंगे। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रही थी। बाकी मैं तो यही बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ आप, हर टेस्ट में इंप्रूव करो। आपके जो भी मेंटर हैं, जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनके सजेशंस को लिटरली मत लो, बट उसमें इंप्रूव करने का कोई स्कोप है तो इंप्रूव करो, क्योंकि वो लोग को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग ने ज़्यादा कॉपीज देखी हैं, वो लोग जानते हैं कि क्या करने से मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते। बस मेरे ये था। और मेंस में देखो, इन्होंने जैसे बोला कि हर क्वेश्चन में फ्लावरी लैंग्वेज नहीं है। अब ये गेम ही पूरा कंपटीशन का है, तो योर गोल शुड बी कि दूसरों से कम खराब कैसे लिखे। ये गोल होगा तो भी आप इस अबव एवरेज तो ला दोगे। तो
क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 3 आवर्स है, एक क्वेश्चन में 7-8 मिनट मिलते हैं, तो हर एक क्वेश्चन में इक्वली आप जस्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने देखे नहीं है पहले, जिसको आपने ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया होगा। तो जस्ट ट्राई कि आप अबोव एवरेज लिख पाए, दूसरों से कम खराब लिखो, तो देन यू विल ऑल्सो पास। So this is for me. अच्छा, एक और पॉइंट मैं बोलूंगा, इस एग्जाम में सभी लोग यही कहते हैं इनोवेट करो इनोवेट करो। आपको इनोवेट प्रेजेंटेशन के तरीके में हो सकता है, आप कैसे अपने आंसर को अच्छे तरीके से कन्वे कर पाओ एग्जामिनर को। बाकी सोर्सेज में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, इसमें अगर इनोवेट करने जाओगे तो मोर ऑफन दैन नॉट आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। तो जैसे बोलते हैं ना, कंटेंट इज द किंग बट प्रेजेंटेशन इज द क्वीन। तो आप किंग को एज इट इज़ रहने दो, आपके बेसिक सोर्सेज को कवर करो, आप करंट अफेयर्स को कवर करो। बाकी प्रेजेंटेशन में आप जितना इनोवेट कर सकते हो करो, और विद द हेल्प ऑफ मेंटर आप उसको रेगुलरली इवेल्युएट करो। That's it. और PSR ऑप्शनल किसका है? तो फॉर PSR आई कैन टेल यू ओनली 2 थिंग्स कि PSR में 2 चीज़ पे ऊपर आप ध्यान रखना। फर्स्ट इज़ लैंग्वेज, ट्राई टू बिल्ड द वोकेबलरी, क्योंकि PSR में कीवर्ड्स की अगर आप डिक्शनरी बना लोगे तो दैट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। एंड सेकेंड थिंग इज़ ट्राई टू बिल्ड फ्लो। जो क्वेश्चन में ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है उसमें फ्लो बनाओ, सो दैट द पेपर चेकर लाइक्स व्हाट यू आर राइटिंग। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि व्हाट वी राइट इन GS2 वी ऑप्शनल भी काफ़ी लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप मेक श्योर कि आपका लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपका फ्लो हो जाए। और ये फ्लो वाला चीज़ है ना, दैट विल वर्क फॉर ऑल्सो ऐसे पेपर, क्योंकि ऐसे में भी इफ़ यू कैन मेंटेन द फ्लो ना, देन यू कैन हैव एन एज। तो दिस इज़ द एडवाइस फॉर PSI स्टूडेंट्स। सोशो वालों के लिए भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, जस्ट 1 मिनट, मैं सोशो का एक पॉइंट बोल देता हूँ। हाँ, तो क्या है ना, हमको यही बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा थिंकर्स को कोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स लिखो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका आंसर आर्टिफिशियल हो रहा है। आपको जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी डिमांड को आप पहले एड्रेस करो, उसके रेलेवेंट अगर कोई थिंकर है उसको लिखो। बट थिंकर्स को ओवर फ्लड करने से क्या होगा ना, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी लोगों से मैंने सुना है, मैंने अप्लाई किया है। और देखो, मार्क्स अभी आने वाले 1-2 दिन में, डिटेल्स मार्क्स तो मैं बताऊंगा मेरे को कितने मिले। बट आई थिंक दिस हैज़ वर्क फॉर मी। तो ज़्यादा उसको मतलब मत करो ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जितना सिंपल रखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो लाइक समटाइम्स क्वेश्चंस में अगर अलग दिखना है तो ओरिजिनलिटी चाहिए फॉर ऑप्शनल पेपर। आई एम सेइंग कि काफ़ी टाइम अगर आपके आंसर्स थोड़े ओरिजिनल रहेंगे, सो दैट विल फेच द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, जो भी होगा चेक करने वाला। तो एग्ज़ाम डे पे मेरा PSR में भी यही दैट हैज़ वर्क फॉर मी, कि मैंने उस दिन पे यही सोचा था कि ये मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम है और मेरे को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम मिल गई थी क्योंकि मैंने प्रेशर हटा दिया था। सो दैट हाउ मैं थोड़ा ओरिजिनल आंसर्स लिख पाया था और मेरा फ्लो बहुत नेचुरल हो गया था उस दिन पे। सो एक ओरिजिनलिटी भी वर्क कर सकती है। यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स है वो मत सोचना कॉलेज एग्जाम है खराब हो जाएगा। नहीं, पर मैं इसलिए क्योंकि मेरा गोल्ड मेडल था भाई, तो इसलिए इट इज़ फाइन। गोल्ड मेडल वाला इंजीनियर हो तो भी मत सोचना। कोई क्वेश्चन पूछा था PSI के सर से, हाथ उठे देखे थे यार मैंने। एनी क्वेश्चन प्लीज। नहीं, जैसे आपने कोई टॉपिक कवर हो गया, उसके बाद सबसे पहला काम होना चाहिए आपको PYQ कवर करने हैं। उसके PYQ हो गए, उसके बाद आप ऐसे कोई भी दिन फिक्स कर लो, 7 दिन में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, कि उसके नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। बाकी जैसे आपका कोचिंग में चल रहा है तो आपका टेस्ट भी होता होगा ना, टेस्ट में पुराना टॉपिक आ रहा है तो उससे पहले 2-3 दिन पहले या कभी भी एक दिन फिक्स कर लो कि इस दिन मेरे को ये पढ़ के जाना है, बस उससे हो जाएगा। और रिवीजन के लिए मतलब मैं तो 2-3 चीज़ें फॉलो करता था कि एक तो मैं स्क्रिबल बहुत करता था, आई यूज्ड टू स्क्रिबल अलॉट। और एक वर्ड बोलते हैं ना हिंदी में जुगाली करना, तो बार बार जो पढ़ा है उसको ना चलते रहने दो। और थर्ड थिंग जो मेरे लिए बहुत काम की है, मैं आई यूज्ड टू टीच माय फ्रेंड्स, तो मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाता था वो। जो भी मेरे को लगता है ना कि टफ है रिवीजन के लिए, तो मैं किसी ऐसे दोस्त को जो UPSC से रिलेटेड नहीं है उसको फ़ोन करके पढ़ा लेता था। उसको कुछ पता नहीं चलता था, वो हाँ बोलता था, तो मैं मेरा काम हो गया, उसका काम हो गया, ठीक है, आई वर्क माई वे। तो ये मेरे लिए काम किया था। पहले उनको पूछने दीजिए, बोलिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होना चाहिए कि आपको समझ में आए, भले आपके फ्रेंड को भी समझ में ना आए, खाली आपको समझ में आए। जो लो हैंगिंग सब्जेक्ट है सबसे पहले उनके बना लो, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको PYQ करने का यही फायदा होगा। जैसे PYQ करेंगे ना आप आर्ट एंड कल्चर के, आपको पता चलेगा कि विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म जैनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि पूरी सब्जेक्ट के हमारे 700 पेज के शॉर्ट नोट्स ही हो गए,
वो मत करो। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स खाली लिख के रख लो और उसको बार बार रिवाइज करो। आई थिंक बहुत ज़्यादा फोकस मत करो शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। जो आपके नोट्स है कोचिंग के, वो तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, जैसे एग्जाम से एक दिन पहले, टेस्ट से एक दिन पहले, उसके लिए खाली आप शॉर्ट नोट्स रखो। शॉर्ट नोट्स तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई किया था शॉर्ट नोट बनाने का, 700 पेज की बुक का 800 पेज का मैंने शॉर्ट नोट बनाया था। तो उस टाइम पे ही पता चल गया था कि शॉर्ट नोट मेरे लिए बनेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में जब भी शॉर्ट नोट बना के जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आई थिंक शॉर्ट नोट्स आपके नेचुरली बन जाएगी, 4-5 रिवीजन या 3-4 रिवीजन हो गए ना, उसके बाद आपको नेचुरली एक इंट्यूशन आ जाता है कि ये काम का है, ये काम का नहीं है। और उसमें भी आपको ओवर द पीरियड आपको पता चलेगा ये मैं बार बार भूल रहा हूँ। तो मेरे लिए शॉर्ट नोट्स मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिवीजन करना इतना वास्ट सिलेबस है, और मेंस के एग्ज़ाम के एक वीक पहले अगर आप रिवीजन करने बैठते हो तो ऐसा लगता है कि कहाँ से चालू किए कहाँ ख़त्म करें। तो शॉर्ट नोट्स में जैसे डेटा है, थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स है वैल्यू एडिशन के, उसके शॉर्ट नोट्स मैं बना देता था। पूरा टॉपिक वाइज मैंने कभी शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं है, क्योंकि मेरे बस का नहीं था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। बट हाँ, फिर भी मेंस के लिए क्रिस्प नोट्स थोड़े होंगे तो इट विल मेक योर लाइफ बेटर ओनली। हाँ, जैसा कि आपको पेपर देने जाना है, सपोज GS2 का पेपर है, आपको उसके शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो बीच का 1-1.5 घंटे का गैप है उसमें कवर हो जाना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा के आपके शॉर्ट नोट्स हैं तो वो वर्थ इट नहीं है फिर। और कोई क्वेश्चन? I wanted to ask for PSIR. In PSIR, in paper 1, part B, we have IGP. How you managed it with GS2 quality? Because almost syllabus same thing है. मैंने कभी अलग किया ही नहीं, 1B और GS2 साथ में ही रखा, क्योंकि पता था कि दोनों को अलग, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है सब। तो बस चेंज द वे ऑफ राइटिंग इन बोथ द पेपर्स, बाकी कंटेंट सेम रहता है। GS में मैं थोड़ा पॉइंट वाइज लिख देता था, और ऑप्शनल में आई हैड टू राइट इन अ फ्लो। तो वो क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड था तो मुझे आता था कि कैसे लंबा खींचना है। बाकी GS में वही कंटेंट को आप क्रिस्प थोड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें सब लिख रहे हैं। तो बट ऐसा कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं है कि GS में भी आप पैराग्राफ में नहीं लिख सकते, पास टॉपर्स ने भी लिखा है। बट वो पॉइंट वाइज बेटर रहेगा आपके लिए। मैं ज़्यादा इतना सेग्रीगेट नहीं किया था 1B और GS2 में, क्योंकि ऊपर से मेरा 1B की वजह से GS2 बेटर हुआ था, सो दैट कैन हेल्प। वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है 1B से। नहीं, मैंने सोशलॉजी सेल्फ स्टडी से ही किया था। हरलम्बोस एक बुक आती है, तो उससे पढ़ा था, उसकी सेलेक्टिव स्टडी करी थी। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी एक जगह पे, वहाँ पे मैंने टेस्ट लिखे थे, उसके जो आंसर्स है। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंस में बोलना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। मेंस में आपका वैल्यू एडिशन न्यूज़पेपर से होगा, बुक से होगा, सब जगह से होगा, लेकिन सबसे अच्छा वैल्यू एडिशन आपका जो टेस्ट लिखेंगे ना आप, उसके आंसर्स होंगे, उनको आप पढ़िए। उसमें से जो भी डेटा है, जो भी फैक्ट्स है, जो भी कोट्स है, उनको मतलब लिख के रखिए कहीं पे उसको रिवाइज करने के लिए, तो वो सबसे अच्छा वैल्यू एडिशन होता है। तो सोशलॉजी में मैंने यही किया था। हरलम्बोस से मैंने इतने नोट्स बना लिए थे, उसके बाद टेस्ट देते गया, मैं वैल्यू एडिशन करते गया, करंट अफेयर्स से जो भी आ रहा है उसको वैल्यू एडिशन कर दिया, तो हो गया बस। और आंसर लिखने में है कि हाउ टू अप्रोच फॉर ऐसे, व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर ऐसे? ऐसे में मेरा यही था कि मैंने भी टॉपर्स कॉपी से ऐसे पढ़े थे। ऐसे के लिए मैंने कोई क्लासेस या कुछ अलग से नहीं लिया था। तो उसमें आपको टॉपिक्स को समझना होता है कि टॉपिक अगर आपने सही इंटरप्रेट कर लिया तो आपको अच्छे मार्क्स तो ऐसे मिल जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज अगर आपने फ्लो में लिख दी, उसमें करंट के कुछ एग्जाम्पल डाल दिए, अगर आपका कोहेरेंसी है ऐसे में, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आप उसको वर्ड लिमिट ठीक से रखिए। बस यही है ऐसे में। तो जैसे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। इस बार का पेपर था ऐसे में, तो इस बार के टॉप चारों, जैसे सेक्शन 1 सेक्शन 2 में ऐसे ऐसे टॉपिक थे, मेरे को पता था इसमें मैक्सिमम लोग लिखेंगे ऐसे। ये स्ट्रेटेजी रहती है कई लोगों की कि ऐसे टॉपिक हम चूज़ नहीं करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा लोग लिखेंगे, उनको लगता है कि ऐसे करके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। बट मेरा ये था कि मेरे को जिस पे अच्छे से लिख पाऊंगा मैं, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उसी में लिखूंगा। और दोनों टॉपिक मैंने वही चूज़ किए थे। पहला तो वो था हैप्पीनेस इज द बात, और दूसरा कौन सा था, मैं लिख के लाया हूँ। दूसरा वो था कि इफ़ यू वांट टू टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ ए मैन गिव हिम पावर। तो मैंने ये दोनों लिखे थे और आई थिंक मेरे को अच्छे मार्क्स मिले। तो आप ये मत सोचो कि इसमें कम लोग मिलेंगे, लिखेंगे, हम कुछ नया लिख देंगे। आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो, जिसमें अच्छे से लिख सकते हो, आप उसको लिखो और अच्छे से लिखो बस। ऐसे के लिए मैंने भी सिमिलरली टॉपर्स कॉपी से ज़्यादा बढ़िया मेरे को कोई मटेरियल मिला नहीं, क्योंकि हर जगह भी सेम ही मिलते हैं, या फिर कोट्स का कंपाइलेशन होता है या फिर सम आइडियाज़ अबाउट
थोड़ा डेटा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसा कर सकते हैं कि जीएस का सारा नॉलेज है ना, उसको ऐसे में आप एनरिचमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स हो गए जैसे वुमेन पे कुछ ऐसे है, तो ऑलरेडी सोसाइटी में वी हैव इनफ मटेरियल कि वुमेन का कुछ डेटा है या वुमेन के चैलेंजेस है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे में। तो ऐसे सच है, ऐसा है कि आपको जो भी जीएस में आप पढ़ रहे हो उसका कंक्लूजन करके आप ऐसे में डाल सकते हो, और टॉपर्स को भी वर्क फॉर मी, दैट वाज माय अप्रोच फॉर ऐसे। फिर से मैं यही बात बोलूँगा, ऐसे में ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा कोई फ्लावरी लैंग्वेज लिखने से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई वोकेबलरी बहुत बहुत ही कठिन कोई शब्द लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स देगा। आपको फ्लो मेंटेन करना है, टॉपिक का जो एसेंस है वो मेंटेन करना है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसमें, नो इश्यूज। आपका लैंग्वेज भले ही बहुत सिंपल हो, आप 10th क्लास में वो ऐसे लिख सकते थे, लेकिन अगर आपने टॉपिक का एसेंस मेंटेन किया है, फ्लो मेंटेन किया है, आपको मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। हाँ बोलिए। मैम मेरे को नाम तो नहीं पता उसका, बट एक ऑरेंज आती है और एक ये ब्लू ग्रीन करके आती है, वो मोटी वाली थी ना ब्लू ग्रीन, वो ली थी। ओनली क्लास नोट्स, नथिंग एल्स। पीएसआई के लिए क्लास नोट्स है, ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्लास नोट्स हो गए थे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाता तो और 2 साल लग जाते, तो क्लास नोट्स ही बहुत है, उसको ही रिवाइज करो, क्योंकि कुछ ज़्यादा अगर एक सोर्स पकड़ा है तो हैव फेथ इन इट, क्योंकि बहुत लोगों को इधर उधर मुंह मारोगे फिर अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक। मतलब वही है कि स्टिक टू वन सोर्स, हैव फेथ इन इट, रिवाइज करोगे तो उस पर कमांड आ जाएगा। तो मेरे लिए क्लास नोट्स वर्क फॉर मी, और पीएसआईआर में क्या है कि बैकग्राउंड भी थोड़ा हेल्प कर दिया था। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, ये बहुत क्लीशे लगता है बार बार बोलने में कि मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन, बट ये सभी लोगों की यही स्ट्रेटेजी होती है जो सेलेक्टेड होते हैं। तो आप बजाय कि खुद फेल होके फिर उसको रियलाइज करें, कि हम शुरू से ही यही रखें कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे और मल्टीपल रिवीजन करेंगे, और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब एक बार सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज क्या आप लोगों ने फॉलो करे वो क्लास में जैसे ऐसे के लिए तो टॉपर्सकॉपी बोला, GS1 में ज्योग्राफी के लिए क्लास नोट्स थे, प्लस आई हैव डन समथिंग ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स, यूट्यूब से थोड़ा पढ़ा था, या फिर सोसाइटी के लिए भी क्लास नोट्स। मेजोरिटी मेरा तो क्लास नोट्स ही था, बट वैल्यू एडिशन के लिए थोड़ा डेटा के लिए कंपाइलेशन आते थे मार्केट में जो भी अवेलेबल है वो, फिर थोड़े पॉलिटी का हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से या कंपाइलेशन मिलते थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने वैल्यू ऐड किया था, पर प्राइमरी सोर्स मेरा क्लास नोट्स ही रहा है, इवन फॉर एथिक्स ऑल्सो एंड सब सब्जेक्ट के लिए। तो मैं तो क्लास नोट्स से ही मैंने बार बार, क्योंकि मैंने डिवाइस कर लिया था कि प्रीलिम्स के लिए क्लास नोट्स में से इतना पढ़ना है और मेंस के लिए इतना पढ़ना है, तो मेरा थोड़ा क्लास नोट्स में भी डिवीजन हो गया था, प्रीलिम स्पेसिफिक और मेन स्पेसिफिक, तो क्लास नोट्स वर्क फॉर मी। नहीं, बुक तो सब पढ़ते ही है स्टार्टिंग में, बट अल्टीमेटली यू हैव टू चूज़ वन सोर्स ना, अल्टीमेटली ये लिमिटेड सोर्स आपको सिलेक्ट करना है। अब क्या है कि एनसीईआरटी यू कैन नॉट रिवाइज ड्यूरिंग मेंस सारे के सारे। अब अगर एनसीईआरटी के आपने एक सोर्स में बुक बना ली है तो देन इट इज़ फाइन, बट अगर मेरे लिए वो वर्क नहीं कर रहा था, ऑलरेडी मैंने क्लास नोट्स बनाए थे, तो आई यूज टू रिवाइज दैट ओनली। सर जो करंट अफेयर्स है, जैसे हमें पोर्टल पे डीसी मिल रहा है, हमारी वीकली क्लासेस हो रही है, साथ में मंथली कंपाइलेशन ईयरली, तो आप लोग फोकस किस चीज पे कर लेते हैं कि ये अपने प्राइमरी रखिए, इससे आप डेटा निकाल रहे हैं? जैसे आपके करंट अफेयर्स के संडे को क्लास होते होंगे ना, या जब भी वीक में एक दिन होगा, मैं ऑलरेडी 6 डेज क्लास करता था, तो मुझे लगता था कि एक दिन रिवाइज करता हूँ जो पढ़ा है। मैं करंट अफेयर के क्लास नहीं देखा था मैंने, क्योंकि मुझे लगा था कि अब नहीं हो सकता 6 दिन के बाद। तो क्लास करंट अफेयर्स के लिए वही मैंने एक सोर्स पकड़ लिया था कि मंथली हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मंथली पढ़ता था, सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सिचुएशन ऐसा था कि यहाँ से मैं वापस चला गया था, फिर मैं आई यूज्ड टू डू जॉब, सो मेरे लिए वो ईयरली कंपाइलेशन वर्क। दोनों ईयर स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग थी, पर मैंने ऐसा जो कंपाइलेशन है उसके ऊपर ही फोकस ज़्यादा रखता था, क्योंकि उससे मेरा जल्दी काम ख़त्म होता था। I have no idea in this question. Next question.
देखो, अगर मेरे डेली रूटीन की बात करूँ ना, तो मैं क्लासरूम कोचिंग में मतलब ऑफलाइन में नहीं था, मैं ऑनलाइन में था, तो मेरे को ऐसा टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा इशू नहीं था। बाकी मेरा जॉब था, तो उसमें मेरा ये था कि जॉब से आने के बाद मेरे को पढ़ना है। तो मेरा ऐसे नहीं था कि 5 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, बस डेली के टारगेट्स होते थे मेरे को, वो कवर करने हैं। वीकली टेस्ट या जब भी टेस्ट होगा वो टेस्ट देना है, उसमें परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करके आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है। उसके अलावा मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा बता पाएगा, इसमें तो ऑफलाइन में था। नहीं, डेली रूटीन मेरा जान लोगे तो फिर लगेगा कि अब कैसे करें। बट फोकस यही रहता था, जैसे जब जब क्लास चालू रहती थी तो फोकस यही रहता था, जो दिन जो क्लास हुआ है उसको रिवाइज तो कर ही लेना है। उसको बोल के पढ़ो, किसी को पढ़ाओ, जैसे भी, पर उस दिन का उस दिन ही ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लासेस इतने जल्दी पास होंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बैकलॉग इतना बढ़ जाता है। तो बेसिक फोकस मेरा यही रहता था क्लास के दौरान कि आज जो पढ़ा है वो आज तो कर ही लूँ, फिर वैल्यू एडिशन हो ना हो, बट उस दिन का ख़त्म हो जाता था मेरा। और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में तो फिर फुल टाइम कर रहा था, तो फिर जब मन किया तो 7-8 घंटे, कभी 10-12 घंटे, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन होती थी कि पढ़ना है, जो थोड़ा बहुत रिवाइज कर पा रहे थे। डेली रूटीन ऐसा जैसा कुछ अपने हिसाब से होना चाहिए कि आपको व्हाट वर्क्स फॉर यू। किसी के लिए 10-12 घंटे वर्क करता है, किसी के लिए 5-6 घंटे में भी काम हो जाता है, बट ज़्यादा फोकस क्वालिटी आवर्स पे अगर दे पाओ तो दैट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होगी, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। और अब ज़्यादा डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर, क्योंकि आपका फ्लो आपका ही है, योर वे इज़ योर वे, आपकी स्ट्रगल आपकी होगी, आपकी कंडीशंस आपके हिसाब से होगी। तो यू हैव टू डिवाइज योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस। यही मैं कहूँ। वही, कोई ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हम यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं वो हमारे लिए काम किया है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। आपको जो अपने लिए लगे कि काम कर रहा है, चाहे तो उसको, अभी आपके पास 1 साल है, चाहे तो उसको अटेम्प्ट करके देखो। काम नहीं कर रहा है तो छोड़ देना है, फ्लेक्सिबल रहना है अप्रोच में। मेरा कहने का मतलब ये है। वही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे उसमें, सोशलॉजी में जितने भी हैं। तो वो या तो आप कोई कोचिंग कर सकते हैं, या तो कोई टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक लेके उसको आप टॉपिक्स, सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, उसमें बहुत मोटी बुक है, वो आप कर नहीं पाएंगे उसको 2 साल में भी। तो उसको चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद उसके पीवाईक्यू देखो, कौन कौन से पीवाईक्यू है, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। फिर से एक बार चैप्टर को पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर उसको बार बार रिवाइज करो। आप एक बार आपका सिलेबस खत्म हुआ, चाहे ऐसे कर लो पेपर 1 या पेपर 2, जैसे भी आपको सेगमेंट में डिवाइड करना है वो डिवाइड करके उसके बाद आप टेस्ट लिखो, अपना परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करो, मेंटर से बात करो कि हमको क्या इंप्रूवमेंट करना है। ऐसा शुरू कर सकते हैं। सॉरी, देखो, कोई भी ऑप्शनल हो, आपको थ्योरी के साथ अगर करंट अफेयर्स उसमें डाल देंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे कुछ भी हो, तो वो आपको एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये पढ़ लिख रहा है, इसको पता है कुछ क्या चल रहा है दुनिया में। जैसे हम इसका संस्कृताइजेशन का एग्जाम्पल लिखते हैं, तो अब महाकुंभ का एग्जाम्पल लेंगे कि हम इसमें 60 करोड़ ऑफ पिलग्रिम्स केम, तो ये भी तो एक एग्जाम्पल है उसका। तो ऐसा कुछ भी करंट अफेयर्स में हो रहा है, उसको आप उससे लिंक करके लिखेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स को सोशलॉजी से लिंक कर देंगे ना, आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कुछ ना कुछ वो लोग पूछेंगे। तो अभी से करके चलो, उसको लास्ट में क्यों करना है हमको। एनीवन एल्स? देखो, सबसे पहले फोमो खत्म करना है, कुछ भी नहीं है। इस बार लिस्ट में नाम देखो तुम, कितने लोग का है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उनके मेंस पे कितने अच्छे स्कोर आए। तो बिल्कुल फोमो तो रखना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि शुरुआत हमको आंसर राइटिंग से नहीं करनी, शुरुआत हमको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से करनी है। आप जो भी क्लास में पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक को आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, आप उसको अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, वो आपको चेक करना है सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी, जैसे डिलिमिटेशन का इशू है, तो डिलिमिटेशन का इंडिया में क्या इशू चल रहा है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस कमेटी ने क्या बात बोली है। तो या तो आप उसके 1 पेज के शॉर्ट नोट्स बना दो, उसके बाद आंसर लिखो, नहीं तो आप मतलब कैसे भी, हाउ टू गो अबाउट इट आप देख सकते हैं। तो एक एक टॉपिक को करके चलेंगे ना, आपका हो जाएगा। और आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेंगे कि मेंस इस एग्जाम में पूरा ऐसा साइकिल है जो सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। तो मेंस में आप ये कर लो कि GS2 में पॉलिटी के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, IR के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अच्छे से आप अपने नोट्स तैयार कर लो और उसको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। उसमें बिल्कुल भी फोमो रखने की तो बात ही नहीं है भाई, इंजीनियरिंग तो निकालते एग्जाम मैक्सिमम, और कौन निकालते हैं। तो बिल्कुल भाई, ऑफेंड मत लेना यार। नहीं भाई। तो बिल्कुल फोमो रखने की बात नहीं है, आप तैयारी करो और होगा। वो वही है, शुरू करने से पहले हर किसी को डर लगता है, वो तो शुरू करना है बस। बोलो, कुछ बोलो, तुम्हारा क्या है।
नहीं नहीं भाई, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की। I will go for interview right now. So, Means जो क्लासरूम जो होता है उन्हीं में जो बुक्स हैं उनकी नॉलेज इंटीग्रेट करना है या फिर सेपरेट अपने नोट्स बनाने हैं? क्लास नोट्स ऑलरेडी उसमें सब इंटीग्रेटेड ही होगा। जो सर पढ़ाएंगे तो ऑलरेडी विल इंटीग्रेट एवरीथिंग, सारे सोर्स का वो कंपाइल करके देन फिल्टर आउट करके अच्छे से अच्छे नोट्स ही बनाते हैं सारे सर। तो अगर वो उसके ऊपर आप फेथ रखोगे तो दैट विल वर्क फॉर यू। तो सर सेपरेट खुद के नोट्स बनाने की नीड नहीं। आई थिंक क्लास नोट्स ही रिवाइज कर लोगे तो बहुत हो गया उतना भी। क्लास नोट्स के बाद मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्लास नोट्स के बाद अपने नोट्स क्यों बनाने हैं? उसमें करंट अफेयर, जैसे आपका 6 महीने पहले कोई हो गया था, उसका करंट अफेयर में कुछ आया तो उसको, हाँ बस। वो तो सिखा देगा ना, नोट मेकिंग में थोड़ा स्पेस मार्जिन में रख देना, देन यू कैन वैल्यू एड समथिंग, सम पॉइंट्स जो डेवलपमेंट हो जा रहा है। मेरा बैकग्राउंड भी है, ऐसा है कि मतलब हो जाएगा, ऐसा लगता है क्वेश्चंस काफी टाइप के होते हैं। आप कंफर्टेबल हो ना जूलॉजी में, बस दैट्स ऑल इट्स रिक्वायर्ड। सर तो मतलब लोग कहते हैं कि अरे तुम मतलब कोई लेता नहीं है ना जूलॉजी से, तो बिना इसलिए नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सारे ऑप्शनल से टॉपर्स निकलते हैं, सारे ऑप्शनल से सिलेक्शन होता है। आप अगर कंफर्टेबल हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये सब्जेक्ट बुरा है। मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल में था, लेकिन मैंने सोशलॉजी क्यों लिया? क्योंकि मेरे को मैकेनिकल छोड़े काफ़ी टाइम हो चुका था। उसको शुरू से करना मेरे को बहुत टाइम और एफर्ट्स लगते कंपेयर टू सोशलॉजी। उसके लिए मैंने सोशलॉजी लिया, प्लस मैं सोशलॉजी में इंटरेस्टेड था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जूलॉजी अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, आप ले सकते हैं। और इन इसमें क्या है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, यू हैव टू कट आउट द नॉइज़। बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, यू आर लिविंग इन ORN, ऑलरेडी बहुत नॉइज़ है और मल्टीपल एडवाइस होता है। तो मेरा फर्स्ट एडवाइस इज़ हैव फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना कि सेल्फ डाउट बहुत आएगा। तो अगर खुद पे फेथ नहीं होगा ना तो यू विल नॉट सर्वाइव वेल। तो इसके लिए हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सोर्सेज। यू आर नॉट इन्फीरियर देन एनी वन, नो वन इज सुपीरियर देन एनी वन। ठीक है, सब इक्वल है, यू विल सेल थ्रू। आपका कुछ अलग वे है, दैट विल वर्क फॉर यू, सो डोंट डाउट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। यूपीएससी तो नॉर्मलाइजेशन भी करता है ना, तो आप उतना क्यों डर रहे हो? सर जैसे अभी जीएस की क्लास चल रही है, तो फिर कुछ टाइम बाद सीसैट की और ऑप्शनल की स्टार्ट हो जाएंगे, तो तीनों को साथ में कैसे लेके चलें क्लासेस को? मैंने CSET के क्लास नहीं किए, बट GS ऑप्शनल का मैं मैनेज ऐसा ही करता था कि मैंने अल्टीमेटली वही था, जो भी दिन में पढ़ा है वो दिन में रिवाइज करना है। GS के क्लास और ऑप्शनल के क्लास के बीच मेरे को 1.5 घंटा मिलता था। तो 1.5 घंटे में मैं, पहले मेरा ऑप्शनल का क्लास होता था तो 1.5 घंटे में मैं इधर गुरुद्वारा में पढ़ लेता था। वहाँ बहुत शांति रहती थी तो अंदर जाके पढ़ लेता था मैं। वहाँ 1 घंटा बैठ लिया और उसके बाद GS का 9 to 6 वाला बैच, 6 to 9 वाला बैच था, तो आफ्टर डिनर में वो रिवाइज कर लेता था। मैनेज यही है कि योर गोल शुड बी कि जो दिन में पढ़ा है, जो आज पढ़ा है वो आज रिवाइज हो जाए, बस दैट विल वर्क। ठीक है, तो अब इंटरव्यू पे मूव करते हैं। सर, जो मेंस के जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे उसको कैसे टैकल करते? जिसको कुछ आइडिया नहीं था आपको, उसको लिखते कैसे थे एग्जाम में? GS1 में एक ट्विस्टर का क्वेश्चन आया था एक बार, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उसका ट्विस्टर क्या है, तो मैं छोड़ के ही आया। ट्विस्टर्स सर, तो मैं छोड़ के ही आया था उसको। अटेम्प्ट करके कोई फायदा नहीं है ना, दूसरे क्वेश्चन में टाइम कम क्यों करना है हमको? जैसे ऐसे कोई अलग टॉपिक से जिसको छोड़ नहीं सकते तो कैसे करेंगे उसको? छोड़ नहीं सकते तो कुछ ना कुछ लिखो, फिर उसके रिलेटेड कुछ भी। जैसे डेमोग्राफिक विंटर का भी एक क्वेश्चन था GS1 में, तो आपको कुछ तो आइडिया लग जाएगा डेमोग्राफी क्या है, विंटर मतलब कुछ ना कुछ कम होने जैसा होगा। हाँ, कम होने। तो जितना आइडिया लग रहा है आपको उतना करो उसको, मतलब कुछ कर नहीं सकते ना उसमें, जितना जो आता है आपको उसमें लिखो। ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पेरिफेरल नॉलेज हम गेन कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसके रिलेटेड आपको आता ही होता है। जो भी कोई भी टॉपिक ऐसा यूनिक आएगा, बट स्टिल यू कैन कनेक्ट विथ योर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटेरियल। तो इसमें क्या है कि वास्ट इन्फॉर्मेशन है, उसकी वजह से आपका पेरिफेरल नॉलेज उस टाइम पे हेल्प कर पाएगा आपको। आंसर राइटिंग के लिए अप्रोच कैसे रखें? क्योंकि हम लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं तो क्वेश्चन देखते तो क्वेश्चन समझ नहीं आता है क्या लिखें, और जब लिखते हैं तो उसको जो आंसर लिखते हैं वो खुद के लिए उतना अप्रोचेबल नहीं होता कि उसमें हम खुद मार्क्स दे सकें जितना देना चाहिए। आंसर राइटिंग में तो वही है, यू हैव टू कैटर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये सब बोलते हैं और यही वर्क करेगा। सबसे बेस्ट रहेगा कि प्रैक्टिस करोगे ना,
जितना उससे आपका परफेक्शन आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने भी जैसे आंसर लिखे थे तो मुझे लगा था कि 5 साल में भी नहीं होगा, बट ये क्या है कि आप प्रैक्टिस करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपका सिलेबस जैसे जैसे ख़त्म हो जाता है तो आपको एक नेचुरली कॉन्फिडेंस भी आता है। यू कैन मैनेज जो क्या डिमांड है क्वेश्चन की, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से यू विल सेल इट। जब आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में प्रेशर आएगा ना तो सब आ जाएगा, डोंट वरी, वो टाइम ही ऐसा रहता है। तो जैसा आपने बोला ना कि खुद ही उसको एवेल्युएट नहीं कर पाते कि कैसे एवेल्युएट करें, तो उसके लिए तो आपके मेंटर्स रहेंगे ना। आप डरो मत कि उनके पास जाने से वो बोलेंगे कितना गंदा आंसर लिखा है भाई। आप कॉन्फिडेंस से जाओ उनके पास, जो भी इंप्रूवमेंट का वो बोलते हैं उसको करो। नेक्स्ट आंसर में अगर आप 1% भी इंप्रूव करेंगे तो ओवर द ईयर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट, बस वही पॉइंट है इसमें, और कुछ नहीं है। आई थिंक अब इंटरव्यू का ही स्टार्ट करते हैं, मीन्स का हो गया तो। इंटरव्यू वैसे तो बहुत लंबा स्टेज है, पहले ये 2 स्टेज पार हो जाए वही बहुत बड़ी गेम होती है, बट स्टिल वी विल शेयर द एक्सपीरियंस दैट वी हैड ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो इंटरव्यू में मेरे पास हार्डली 25 डेज थे। मेरा इस साल 7 जनवरी को इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था और मेरा 15 जनवरी को इंटरव्यू था, तो 20 दिसंबर को पता चला था कि ये डेट्स है हमारी। तो वही है, टाइम जब कम होता है तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज। तो इंटरव्यू तो डेफ का गेम है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो लिखोगे तो यू आर प्रोवाइडिंग कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछो, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उस पर फुल प्रिपरेशन हो। जैसे हमारा नाम होता है, हमारा बैकग्राउंड होता है, या फिर जो भी हमारा वर्क एक्सपीरियंस होता है तो उसके, तो ये प्रायोरिटाइज़ किया। और ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होता है इंटरव्यू में, इफ़ यू विल स्पीक तो वो नेचुरल बन जाता है आपकी स्पीच में, एंड दैट विल वर्क फॉर एवरीवन आई गेस। मैं बोलने के लायक नहीं हूँ इंटरव्यू में बट फिर भी बता देता हूँ। इंटरव्यू का बेसिक रूल ये होता है कि आपको जो डेफ भरा है आपने, अभी तो आपने प्री से पहले ही भर दिया है, तो डेफ का आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि मैंने क्या भरा है, क्यों भरा है। उसका कोई भी डायमेंशन में जाके वो पूछ सकता है। प्लस करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स मेंस में आप कुछ भी लिख देंगे, कीवर्ड लिख देंगे, कोई कोई डाटा लिख देंगे, कोई फैक्ट लिख देंगे, तो क्रॉस क्वेश्चन करने वाला नहीं है। मेंस से आपसे हर कीवर्ड पे, हर ओपिनियन पे क्रॉस क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए आप सारी डायमेंशन कवर करके जाएं। और बाकी कॉन्फिडेंस के लिए एक ही है कि जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और हर मॉक में इम्प्रूव करो, क्योंकि आपको कोई आपके फिजिकल अपीयरेंस के लिए बोलेगा, कोई आपके स्माइल के लिए बोलेगा, कोई आपके वे ऑफ आंसरिंग के लिए बोलेगा, तो वो सबको मतलब फिर से यही बोलूँगा, लिटरली नहीं लेना है, लेकिन उसको समझ के जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू हो जाएगा। बाकी मैं ये बोलूँगा कि आपको इंटरव्यू पे मतलब ठीक है अच्छा ही लेके आना है, 200+ लेके आना है सबको, लेकिन इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं रहना है। आपको अपना प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रूफ करना है कि इंटरव्यू में अगर कुछ हो भी जाए उल्टा सीधा तो हमारा बहुत अच्छा रैंक आ सके, तो आपको ये करना चाहिए। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि एग्जाम के दिन ना कुछ भी हो सकता है, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे प्रीलिम्स हो, तो आपको वो चीज़ को अफेक्ट नहीं करने देना है। जैसे मेरा मेंस का एग्जाम था, पहला ही दिन था, ऐसे का पेपर था, तो उसमें जो अटेंडेंस शीट होती है ना, तो उसमें वो रोल नंबर और वो फिलिंग करवाते हैं, रोल नंबर नहीं, कॉपी नंबर एंड समथिंग 2-3 चीज़ फिल करवाते हैं। तो मेरा पूरा गलत हो गया था, वो मैंने गलत भर दिया था, गलत बबल फिल कर दिए थे, और एग्जामिनर मेरे पे ऐसे देख रहा था, मतलब गुस्सा हो गया था वो। बट और मैंने ऐसे लिखना तब शुरू भी नहीं किया था, मतलब बट जैसे भी अपना कंपोजर रख के, मतलब ठीक है, हो गया जो हो गया, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको क्या कर सकते हैं। उसने जैसे भी करेगा, वो प्रेजेंट तो हम हैं, डिटेल्स हम उसको दे देंगे, तो जो भी है जैसे भी है उसको अच्छे से हैंडल करके आपको, क्योंकि आपका वो दिन फिर से नहीं आएगा, आपका वेस्टेड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी वो, तो कैसे भी करके अपना कंपोजर फिर से गेन करें और उसको अच्छे से लिखें। सिमिलरली इंटरव्यू में भी कुछ भी हो सकता है, आप उस दिन हो सकता है हवा चल रही है तो आपके बाल खराब हो गए, आपकी ड्रेस पे कुछ गिर गया, या आप इंटरव्यू में एंट्री करी आपने बोर्ड मेंबर के सामने तो आप उनको ग्रीट नहीं कर पाए, जो भी है आप अच्छे से ध्यान रखें। लेकिन फिर भी कुछ गलत हो जाए तो जो चले गया उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आने वाली चीज़ पे अच्छे से कंट्रोल करके उसको अच्छा करेंगे, बस यही कर सकते हैं हम। कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही रहेगा कि पूरे एग्ज़ाम में 2 चीज़ तो सीखनी चाहिए, कि फर्स्ट इज़ सिलेक्शन एंड सेकंड इज़ मैनेजमेंट। फर्स्ट सिलेक्शन इज़ प्रायोरिटाइज व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड डील विथ योर वीकनेसेस। और सेकंड जो मैनेजमेंट है, फॉर प्रीलिम्स मैनेज जीएस एंड सीसेट, फॉर मेंस मैनेज जीएस एंड ऑप्शनल, एंड फॉर इंटरव्यू मैनेज योर इमोशंस एंड दैट विल वर्क फॉर यू। तो ये मैनेजमेंट और सिलेक्शन का पूरा गेम है। मैनेजमेंट में आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ऐड कर देना, क्योंकि अभी मेंटल हेल्थ का बहुत चल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो टू बी पेड अटेंशन टू, एंड दिस इज़ द वे यू कैन बी हियर ऑल्सो। सो सी यू ऑल द बेस्ट फॉर द। अच्छा, मोटिवेशन किस किस को चाहिए? मैं एक मोटिवेशन की बात बोलने वाला हूँ।
तो आपको जब भी ऐसा लगे ना एग्ज़ाम वर्थ इट नहीं है, इतना सेक्रीफाइस वर्थ इट नहीं है, तो मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी जब रिजल्ट आया था ना, लास्ट ट्यूसडे को रिजल्ट आया, तो उसके बाद से ही इतने सारे बधाई देने वाले लोग, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले लोग हैं। तो हम मतलब टाइम नहीं मिल रहा था हमको बैठने के लिए भी, खाना खाने के लिए भी। मैं घर पे गया हुआ था, तो मेरे फादर ने, मतलब मैं नहीं था आसपास में, बट मेरी मदर ने मेरे को बात बताई थी बाद में। तो मेरे फादर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है वो, ऐसे बात करते नहीं है, बट उस दिन उन्होंने मेरी मदर से एक बात की थी कि यार हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे, मतलब इतना सब कुछ अनरियल फील हो रहा है। तो आप अपने पेरेंट्स को मतलब कितना भी मटेरियल चीज़ दे देंगे ना, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो खुश नहीं होंगे। लेकिन आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके जब उनके सामने जाएंगे, उनके आंखों में जो खुशी होगी, उनके चेहरे पे जो भाव होंगे, वो देखने लायक है। उस दिन के लिए हमको ये तैयारी करनी है, अच्छे से करें, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल क्लियर इट। थैंक यू।